handle movement, the transverse diameter increases, and through the pump handle movement, the AP diameter increases. ये दोनों movements हमने last time देख लिया है, ठीक है, उसको correlate करो. यानी due to contraction of diaphragm and the external intercostal muscle, vertical, horizontal and AP diameter of the thoracic cavity increases. Clear? अभी ये diameter increase हुआ. Why? Because the chest wall, it expand. The diaphragm goes down. And as the chest wall expand, chest wall के अंदर की side पर क्या attach है? क्या attach है? Tell me in a chat box. Chest wall के अंदर की side पर there is a one layer. Yes, parietal pleura is attached. तो chest wall expand होगा तो parietal pleura भी उसके साथ ही जाएगा ना. It is attached. ठीक है? Got it. It is a parietal pleura, right? So as the chest wall expand, the parietal pleura which is attached underneath or the interior of the chest wall की अंदर की side पर जो parietal pleura attached है, वो भी तो जाएगा ना chest wall की साथ बाहर की ओर, वो भी तो expand होगा, ठीक है? अभी वो भी तो expand होगा तो intrapleural pressure क्या होगा? इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. समझ में आया? क्योंकि चेस्ट वॉल एक्सपांड हो रहा है, लंग उसको अंदर की ओर खींच रहा है और चेस्ट वॉल एक्सपांड हो रहा है, यानी जो अपोजिंग फोर्स है वो और स्ट्रांग हुआ. ड्यू टू अपोजिंग फोर्स ऑलरेडी द इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट वॉल बाहर की ओर जा रहा है, यानी और ज्यादा अपोजिंग फोर्स आया. और ज्यादा अपोजिंग फोर्स आएगा तो जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा इंक्रीज होगी. ठीक है? इट मींस कि बिफोर इंस्पिरेशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज -2.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था, नाउ इट बिकम -6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. नेगेटिविटी बढ़ी ना अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर. क्लियर? ठीक है? एंड नाउ as due to as the parietal intrapleural pressure decreases and the chest wall is expanding, तो chest wall क्या ट्राई करेगा कि visceral pleura को अपनी ओर खींचेगा. ठीक है? As the chest wall is expanding, so parietal pleura follows the chest wall. As the parietal pleura follows it, the intrapleural pressure become more negative, and what it will lead to? It will drag the visceral pleura along with it. ठीक है? visceral pleura को खींचेगा बाहर की ओर, और visceral pleura को बाहर की ओर खींचेगा तो visceral pleura किससे अटैच है? किससे अटैच है visceral pleura? लंग से अटैच है. क्लियर? सो visceral pleura is attached with the lungs. तो लंग क्या होगा? लंग भी तो उसके साथ खींचेगा. visceral pleura बाहर की ओर. यस, the visceral pleura is stretched along with the parietal pleura. ठीक है? So what visceral pleura will do? It also stretch the lung, and now the lung is made up of 50% tissue and 50% blood. ठीक है? टिश्यू में भी 90% वो कंडक्टिंग, नॉट द कंडक्टिंग, रेस्पिरेटरी एयरवेज से बना है, अगर याद हो तो फंक्शनल एनाटॉमी. ठीक है? 10% ही कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू में भी उसके पास थोड़े अमाउंट ऑफ कोलेजन होता है और मेजोरिटी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. तो लंग जैसे खींचेगा तो इलास्टिक फाइबर्स खींचेंगे बाहर की ओर, and as the elastic fibers are attached with the airways and it is attached with the alveoli, तो alveoli क्या होगा? So alveoli भी तो बाहर की ओर खींचेगा. So size of alveoli क्या होगी? Size of alveoli increase, and as the size increased, Boyle's law याद है? Boyle's law is applicable to intrapleural pressure also and the alveolar pressure also. As the size of thoracic cavity increases, pressure inside decreases. इसीलिए intrapleural pressure भी decrease हो रहा है. Same as alveolar size increases, ठीक है, due to stretching, alveolar size increases, तो alveoli की अंदर का pressure क्या होगा? Decreases. Clear?
So that is why during inspiration, जो second alveoli है, यहाँ पर देखो, during inspiration the alveolar pressure is -1 millimeter of mercury. Intra-alveolar pressure decreases compared to atmospheric pressure. और कितना decrease होता है? -1. Is it clear? ठीक है, अभी -1 यानी pressure inside the alveoli is less compared to atmosphere. तो अभी मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट ऑफ एयर कहां से कहां होगी? यस, फ्रॉम एटमोस्फियर टुवर्ड्स द एल्वियोलाई ऑफ द लंग. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट एयर फ्रॉम एटमोस्फियर एंटर इनसाइड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग, and entry of air from the atmosphere into the alveoli of lung is known as inhalation, is known as inspiration. Is it clear? This is a mechanism of inspiration. Is it clear? Any doubt in this? Okay, means no doubt. Clear? So this is a mechanism of inspiration. Now at end inspiratory phase, at end inspiration यानी inspiration हो गया, what we are talking? We are talking at under the resting condition. Resting condition means when you are at a rest, when you are doing nothing, फिर भी तो respiration चल रहा है, ठीक है? So during resting condition at end inspiratory phase, end inspiration यानी inspiration बंद हो गया, उस टाइम पर the alveolar pressure is again 0 millimeter of mercury. 0 means it is same, क्योंकि प्रेशर एटमोस्फियर में ज्यादा था, एल्वियोलाई में कम था, तो एयर एल्वियोलाई के अंदर आएगी. कब तक अंदर आएगी? जब तक एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर सेम नहीं हो जाए तब तक. तो अभी सेम हो गया, एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन में सेम हो गया. इट मींस द इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इज 0 millimeter of mercury. ठीक है? Yes, due to Rushil, due to contraction of inspiratory muscles, this pressure changes occurs. ठीक है? So ये हुआ तुम्हारा इंस्पिरेशन. अभी एक्सपिरेशन इज जस्ट अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए वो रिलैक्स तो होने वाले हैं, ठीक है? देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मसल ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एट रेस्ट. रेस्टिंग कंडीशन में जो भी एक्सपिरेशन हो रहा है उसमें कोई भी मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Expiration occurs only due to the relaxation of the contracted muscle, contracted inspiratory muscles. ठीक है? तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कौन से मसल? तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. दिस टू मसल आर गोइंग टू बी रिलैक्स. इट मीन्स जो डोम बना था, जो फ्लैट हुआ था डोम, वो वापस डोम बन जाएगा डायफ्राम का. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स किया, यानी जो बकेट का हैंडल ऊपर हुआ था वो वापस नीचे हो जाएगा, जो पंप का हैंडल ऊपर हुआ था वो वापस नीचे हो जाएगा. इट मींस द वर्टिकल डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड द एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. And as it is going to be decreased, the size of thoracic cavity decreases. And the size of thoracic cavity decreases, so as per Boyle's law, क्या होगा? प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. ठीक है? इट मींस द इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज होगा. इट मींस इट विल नॉट स्ट्रेच द विसरल प्लूरा. विसरल प्लूरा आर रिकॉइल बैक, एंड एज द विसरल प्लूरा इज गोइंग बैक टू नॉर्मल पोजिशन, लंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल पोजिशन. एज द लंग गोज बैक, तो जो साइज एल्वियोलाई की बड़ी हुई थी, इंक्रीज हुई थी, राइट, द साइज ऑफ द एल्वियोलाई आर गोइंग बैक टू इज रेस्टिंग कंडीशन. और रेस्टिंग कंडीशन में जब जा रहा है, इट मींस द साइज ऑफ एल्वियोलाई डिक्रीजेस, एंड एज द साइज ऑफ एल्वियोलाई डिक्रीजेस, उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? उसके अंदर का इंक्रीजेस. क्लियर?
So it increases 1 millimeter more than the atmospheric pressure. Now the pressure inside the alveoli is more as compared to atmosphere. It means the air from alveoli, it moves towards the atmosphere, and this is called expiration. Clear? So जो फोर्थ नंबर का एल्वियोलाई है वो कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर 1 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। उस टाइम पर वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर ज्यादा हुआ एंड द वॉल्यूम कम हुआ। साथ में ग्राफ भी देखते जाना, ठीक है। एंड एट एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन फिफ्थ एल्वियोलाई द प्रेशर इज 0 एंड एट 0 अगेन द लंग वॉल्यूम कमिंग बैक टू इट्स रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो ग्राफ में अगर देखो तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब 1 लिखा हुआ है, जहां पर 1 millimeter intra-alveolar pressure decreases, at that time the volume of lung is increases, and at inspiratory position it is about 0.5 liter. 0.5 liter means 500 ml, ठीक है। it means एक सिंगल इंस्पिरेशन के टाइम पर 500 ml ऑफ एयर तुम्हारे लंग के अंदर आती है, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वो ही 500 ml ऑफ एयर बाहर जाती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर, लिसन इट केयरफुली, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज ब्रीथेड इन और आउट ड्यूरिंग सिंगल ब्रीथ, is known as tidal volume. क्लियर, ठीक है। और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 ml। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, सो अभी मैं इसको पढ़ नहीं रही हूं, ऑलरेडी हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, द नेक्स्ट प्रेशर इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अभी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एल्वियोलर प्रेशर एंड द इंट्राप्लूरल प्रेशर। फिगर में अगर देखो तो जो व्हाइट कलर का अंदर है लंग दिखाया है, उसके अंदर जो भी प्रेशर है वो एल्वियोलर प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई, माइनस जो ब्लू वन है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर है। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, इनसाइड द ऑल द थोरेसिक कैविटी। यानी इंट्राप्लूरल प्रेशर ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पर है, दोनों साइड के लंग में इंट्राप्लूरल प्रेशर एप्लीकेबल है। जो मीडियास्टिनम है ना, मीडियास्टिनम इज सब्जेक्टेड टू इंट्राप्लूरल प्रेशर। दोनों लंग एंड हार्ट एंड इसोफेगस आर सब्जेक्टेड टू चेंजेस इनटू इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर पूरे थोरेसिक कैविटी में है। अभी जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है वो एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर का डिफरेंस है, यानी एल्वियोलर प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर। अभी एल्वियोलर प्रेशर 0 है एट रेस्ट कितना होता है 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर एट रेस्ट कितना होता है -2.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो तुम्हारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है वो है +5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और +2.5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, it is a measure of elastic forces in the lungs that tend to collapse the lung, the recoil pressure. It prevents the lung collapse. The bigger the value of the lung, higher will be its tendency to recoil. यानी जितना thorax तुम्हारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली अगर देखने जाए तो वो इंट्राप्लूरल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना तुम्हारा एक्सपांड होगा इंट्राप्लूरल प्रेशर
और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा यानी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है यानी चेस्ट एक्सटेंड हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो यूजुअली लोग ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में बात करते हैं। जितना ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है उतना इलास्टिक फोर्स ऑफ द लंग ज्यादा है, रिकॉइल प्रेशर ज्यादा है, वैसा बताता है। ठीक है, बट इनडायरेक्टली इट इज डिपेंड्स ऑन द इंट्राप्लूरल प्रेशर। सो हियर द चेंजेस हमने कंप्लीट कर दिया। अभी प्रेशर चेंजेस ऑलरेडी ये हमने देख लिया है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंस्पिरेशन, पहले नीचे की देखो फिगर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर देखो 0 से 1 होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, पिंक वाला, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर -2.5 था, उससे डिक्रीज हो गया, ठीक है, -6 तक गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों का डिफरेंस। उस टाइम पर वॉल्यूम कितना आया, 0.5 लीटर। क्लियर? सो दिस इज चेंजेस ड्यूरिंग सिंगल ब्रीथ। सिंगल ब्रीथ मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, ठीक है। तो वैसे 1 मिनट में हम 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 12 to 16 ब्रीथ लेते हैं हम। ये सिर्फ एक ब्रीथ के चेंजेस है, ठीक है। ओके, सो सेम है, अभी इसको मैं नहीं बताऊंगी, मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड दिस आर द फ्लो चार्ट। अभी ये जस्ट तुमको याद रखने के लिए है, इसका डिटेलिंग होना चाहिए व्हेन यू राइट इट डाउन इन योर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है, ठीक है। मैं जस्ट पढ़ रही हूँ, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। इंस्पिरेशन, this is a mechanism, steps of mechanism of inspiration. Inspiration is an active process. The respiratory center send the signals to inspiratory muscles to contract. So the thoracic cavity expand due to contraction of inspiratory muscles. Parietal pleura follows the expanding chest wall. The intrapleural pressure become more negative. The visceral pleura follows the parietal pleura. Lung expand due to the dragging force of the visceral pleura. So the intrapulmonary pressure or alveolar pressure becomes subatmospheric. So the air from atmosphere rushes inside the lungs. So this is the mechanism of inspiration. This is what happened during the inspiration and expiration. Thorax diaphragm की position देखो during inspiration, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर, राइट, फ्लैट हो गया है। एंड जब एक्सपिरेशन हो रहा है तो वही डायाफ्राम रिलैक्स हो रहा है, यानी वापस डोम बढ़ गया। तो साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी देखो एक्सपिरेशन में कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब साइज कम हो रही है, जो फर्स्ट फिगर है ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो रेस्टिंग कंडीशन वाली है। एल्वियोलाई की साइज देखो, और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन साइज ऑफ एल्वियोलाई देखो, लंग के अंदर ब्लू कलर का, सेकेंड फिगर राइट हैंड साइड की, ठीक है। एल्वियोलाई की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कम होगा, इसलिए एयर अंदर आएगी, एरो दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. Expiration is a passive process. The contraction of inspiratory muscles stops after 2 seconds. Due to the elastic recoil, lungs try to achieve the resting condition, so intrapleural pressure become less negative. The intrapulmonary pressure become more than the atmospheric pressure, so air from alveoli is driven out to the exterior. Expiration is a passive, so no respiratory muscles contract during the normal expiration. So यहाँ पर देखो, and जो थर्ड नंबर की फिगर है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, उसमें एल्वियोलाई एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन वाला है। ये इंस्पिरेशन जस्ट कंप्लीट हो गया है, उस टाइम की पोजीशन देखो, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि जो अंदर प्रेशर है इट इज सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट राइट हैंड साइड की अगर फिगर देखो तो अब भी एक्सपिरेशन हो रहा है, तो साइज ऑफ एल्वियोलाई कम होगी, साइज ऑफ एल्वियोलाई कम होगी तो एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज होगा। एज द एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेस, द एयर मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टुवर्ड्स द एक्सटीरियर, तो वो मूवमेंट दिखा रहा है एरो टुवर्ड्स द एक्सटीरियर। क्लियर? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. So here we completed the
मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो, ठीक है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इस ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तुम सेकेंड सीईटी देखो या प्रीलिम देखो या फाइनल देखो, जो भी देखो, राइट। एंड व्हेन इट इज आस्क्ड, मैं अभी बता रही हूं, व्हेन इफ इट इज आस्क्ड मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन करके शॉर्ट नोट पूछी जाती है, या फिर डिफरेंट प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, या फिर मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो जो पूछा गया है उसके हिसाब से लिखना है, लेकिन अगर फुल क्वेश्चन मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन इफ इट इज आस्क्ड, व्हाट यू सपोज टू राइट इज, अभी नोट और पेन हो तो लिख दो, पॉइंट्स में बता रही हूँ। फर्स्ट, you supposed to write down the definition of pulmonary ventilation. Second, pulmonary ventilation कैसे होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, और प्रिंसिपल क्या है, it depends on Boyle's law. It means you supposed to write the Boyle's law. अभी बॉयल्स लॉ बताता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आना चाहिए, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर चेंजेस होंगे, तो फोर्थ पॉइंट तुम्हारे डिफरेंट प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन आना चाहिए, और जब प्रेशर चेंज होगा तो जाके पॉइंट एक्सपिरेशन होगा, ठीक है। तो जाके तुमको फिर पूरी मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स डिटेल में लिखने हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन के पॉइंट डिटेल में लिखने हैं, क्लियर। एंड जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 2 या 3 लाइन में तुमको फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन लिखने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो अब हम सीखेंगे, क्लियर। बट दैट यू सपोज टू राइट इन 2 to 3 लाइन्स और 3 to 4 लाइन्स, डिपेंड, राइट। ये फैक्टर्स मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी, लेकिन जो फैक्टर्स हम सीखेंगे वो अलग अलग भी शॉर्ट नोट पूछी जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल व्हाट यू सपोज टू राइट? इतना बताने के बाद भी नहीं लिखते हो, इसीलिए प्लीज इस पॉइंट्स को लिख लो। डेफिनेशन लिखनी है, बॉयल्स लॉ लिखना है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंट प्रेशर चेंजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन के सब स्टेप्स लिखने हैं। तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट में डिटेल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द पल्मोनरी वेंटिलेशन: surface tension, surfactant, compliance and airway resistance, right? ये तीनों की डेफिनेशन, यानी जो फैक्टर्स है, सरफैक्टेंट फैक्टर नहीं है, सरफैक्टेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। So factors which affects the pulmonary ventilation: the rate of airflow and the efforts needed for respiration. It depends on surface tension, compliance and airway resistance. So these 3 are the factors affecting pulmonary ventilation, right? So one by one we will learn each factor. Surface tension first. Surface tension: the thin layer of fluid that line the alveoli, which is known as a monomolecular layer, exert a force which is known as surface tension by the van der Waals, or you can call it as an intermolecular force, ठीक है। The surface tension arises at all air water interfaces are more strongly attracted to each other than they are to the gas molecules in the air, right? अभी एल्वियोलाई को देखो तो एल्वियोलाई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स, टाइप 1 एपिथेलियल सिक्रीशन सिक्रेट होते हैं ना, ठीक है।
वो सिक्रीशंस यानी वाटर है, यानी एल्वियोलाई की अंदर की और फ्लूइड की एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होता है, और थिन लेयर ऑफ फ्लूइड है, एंड जो ल्यूमेन है उसके अंदर एयर होता है। एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन है उसमें तो एयर है, एल्वियोलाई की उसके अंदर की और फ्लूइड होता है, राइट। सो एट एयर वाटर इंटरफेस सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ फिगर में, अपर फिगर में दिखाया गया है कि अगर वाटर है तो अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस, बट जो सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें इनवर्डली डायरेक्टेड फोर्स होता है, ठीक है ना, इनवर्ड डायरेक्टली फोर्स होता है। एंड दिस इज हाउ दी वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड फिगर में देखो, ये एल्वेलर मेम्ब्रेन है, उसमें एक लेयर ऑफ फ्लूइड है, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल, एंड सेंटर में गैस है, राइट। एंड सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल इनवर्डली डायरेक्टेड फोर्स क्रिएट करता है, यानी फोर्स इज टुवर्ड्स द एयर, टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है। सो when the liquid it surrounds a sphere of air as in alveolus or in a soap bubble, the surface tension produce inwardly directed force. So the result of this force causes alveoli to collapse. ठीक है, एल्वियोलाई को कोलैप्स, इसीलिए मैंने बताया था, याद हो तो, कि लंग की नॉर्मल टेंडेंसी हो, चेस्ट वॉल की इनहेरेंट टेंडेंसी क्या होती है, एक्सपांड होने की। सो लंग की इनहेरेंट टेंडेंसी कोलैप्स होने की क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इन दी एल्वियोलाई। समझ में आया? सो the net effect of this surface tension is force of the entire lung, which is called the surface tension elastic force, which accounts for 2/3 of the lung elastic recoil, which decreases the size of alveoli during the exhalation. ठीक है, यानी जो लंग में इलास्टिक फोर्स है, लंग इज स्ट्रेचेबल ना, उसमें इलास्टिसिटी है, तो ये जो इलास्टिसिटी है 2/3 इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, 2/3 इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड जो बाकी का 1/3 रहता है वो इलास्टिक फाइबर्स जो लंग पेरेन्काइमा में होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। और इलास्टिसिटी है यानी नॉर्मल लंग क्या कोलैप्स होने की टेंडेंसी होती है। सो दिस इज सरफेस टेंशन की वजह से जो भी इलास्टिसिटी है वो 2/3 है, इसीलिए दिस इज अ मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लंग कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द it has to be overcome to expand the lungs during each inhalation. During inspiration क्या लंग एक्सपांड होता है ना, और लंग की नॉर्मल टेंडेंसी कोलैप्स नहीं होती है, इसीलिए जब इंस्पिरेशन करते हो तो ये सरफेस टेंशन को तुमको ओवरकम करना पड़ेगा एक्सपांड करने के लिए। इट मींस लंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा टू ओवरकम दिस सरफेस टेंशन, राइट, तो ही तो वो स्ट्रेच होगा ना, ठीक है। नहीं तो सरफेस टेंशन की वजह से लंग क्या होता है, कोलैप्स होने की टेंडेंसी है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तुमको एक्सपांड कराना है। इट मींस लंग हैज टू डू मोर वर्क to expand this alveoli. The effect of alveolar radius on the pressure caused by surface tension was best described by the Laplace law. So what is this Laplace law? The Laplace law in a globular structure, ये सभी को पता होगा, is 2T by R, right? The P is a transmural force. If the more the transmural pressure, more the tendency to collapse. P stands for wall tension, that is the sum total of the surface tension, and the R is the radius of the alveoli. It means if the wall tension it remains same, if the radius of the alveoli decreases, the pressure inside it increases. Inversely proportional है ना, wall tension अगर stable रखो तो
रेडियस अगर कम होगा, रेडियस यानी डायामीटर ऑफ तुम्हारा जो एल्वियोलाई है, इफ इट इज डिक्रीजेस, यानी स्मॉलर डायामीटर एल्वियोलाई होगा तो उसका कोलैप्स होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, एज पर द लैप्लास लॉ। ठीक है, सो दैट द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन इज द कोलैप्स ऑफ द लंग। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा। एंड सेकेंड, it draw the fluid from the surrounding interstitial surrounding pulmonary capillaries, causing the pulmonary edema, right? बट यानी सरफेस टेंशन की वजह से दो चीजें होगी, एक द कोलैप्स होगा, दूसरा क्योंकि कैपिलरीज एल्वियोलाई के आसपास कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो वो बाहर कैपिलरीज में से भी फ्लूइड को अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचेगा यानी कैपिलरी से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कलेक्ट होगा तो इट विल लीड टू पल्मोनरी इडीमा, राइट? बट नॉर्मली collapse of the lung do not occur, and normally pulmonary edema is also not happen due to presence of surfactant। अपने लंग के अंदर सर्फेक्टेंट है, इसकी वजह से लंग कोलैप्स कभी नहीं होता है। क्लियर, राइट? सो दिस इज अबाउट द सरफेस टेंशन। नाउ ये सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट that decreases surface tension like a detergent or a soap present in the fluid lining the alveoli. It is secreted by type 2 alveolar epithelial cells which constitute 10% of the surface area of the alveoli. It is a mixture of several phospholipids, proteins and the ions. The most important components are the phospholipid। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं जो बुक्स में दिए गए हैं, बट मैंने पीपीटी में सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही हाईलाइट किए हैं। ठीक है, तो बाकी के कंपोनेंट्स तुमको लिखने हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइपल्मिटॉल फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, उसका क्या फंक्शन है आगे आ रहा है। इट इज अ प्रिंसिपल सरफेस टेंशन लोअरिंग एजेंट इन द सर्फेक्टेंट। सेकेंड इज सर्फेक्टेंट एपोप्रोटीन्स, उसका भी रोल आ रहा है। एंड द थर्ड इज कैल्शियम आयन, यानी फॉस्फोलिपिड हो गया, वो है डाइपल्मिटॉल फॉस्फेटिडिल कोलिन। प्रोटीन तो सर्फेक्टेंट एपोप्रोटीन्स, एंड आयंस में कैल्शियम आयन। नाउ कैल्शियम आयन का रोल है, जैसे हमने न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में कि कैल्शियम एंट्री इट लीड्स टू एक्सोसाइटोसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स। क्लियर? वैसे ही टाइप 2 एल्वियोलर सेल में when the calcium enters intracellular calcium level, when it increases, it leads to release of surfactant molecule via exocytosis into the alveolar lumen। क्लियर? समझ में आ गया रोल ऑफ कैल्शियम, यस और नो? ओके, ठीक है, राइट? अभी फॉस्फोलिपिड। The phospholipid have hydrophilic head and the two parallel hydrophobic tail। कौन सा फॉस्फोलिपिड? डाइपल्मिटॉल फॉस्फेटिडिल कोलिन की बात कर रहे हैं। दिस फॉस्फोलिपिड हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड। यहाँ पर ऊपर की फिगर में देखो, रेड कलर का हाइड्रोफिलिक हेड है एंड ब्लू कलर के टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड है, इट मीन्स वो हेड डिसॉल्व होगा इन द वाटर, in the fluid which lines the interior of the alveoli। alveoli के अंदर की और एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड में ये हेड पोर्शन होगा, और जो टेल पोर्शन है ब्लू कलर का, इट इज टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द alveoli। ठीक है, सो द फॉस्फोलिपिड इट लाइन अप द alveoli with tail facing the alveolar lumen, राइट? यहाँ पर दूसरी फिगर में अगर देखो तो ए वाले में the alveolar lining fluid generate a significant surface tension।
ब्लू कलर का दिख रहा है, उसमें ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स भी है. ईच वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड. बट बी वाली फिगर देखो कि सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ, हाइड्रोफिलिक हेड and hydrophobic tail is towards the alveolar lumen. So in between water molecule, this surfactant molecule present, and because of that water molecule, nearby water molecule is not attracted to each other, and as it is not attracted to each other, it decreases the tension created at the air water interface, and that is why this is how it decreases surface tension. Is it clear? ठीक है. सो ये हुआ तुम्हारा कि हाउ सर्फेक्टेंट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन. नाउ द अल्वेलर सरफेस टेंशन मैं पढ़ रही हूं, ठीक है, रेड वन. द एल्वेलर सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया यानी देयर कॉन्सेंट्रेशन यानी सर्फेक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है. ठीक है. अभी यहां पर देखो, एस पर द लाप्लास लॉ क्या था कि रेडियस कम होगा. लाप्लास लॉ के हिसाब से क्या था, इफ द वॉल टेंशन रिमेन कांस्टेंट, तो अगर रेडियस कम होगा तो ट्रांसम्यूरल फोर्स इंक्रीज होगा. ठीक है. सो व्हेन द एल्वेलर रेडियस इज स्मॉलर, पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है. क्यों? क्योंकि व्हेन द एल्वेलर रेडियस स्मॉल होता है तो सर्फेक्टेंट फिल्म विच इज कंप्रेस्ड, यानी जो आगे मैंने बताया कि सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया. पेन और नोट है तो उसमें लिखो 1 मिलीमीटर का एरिया बनाओ. 1 मिलीमीटर बाय 1, अंदाजे से ही बनाओ, स्केल लेके बैठने की जरूरत नहीं है. ठीक है. 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का एरिया बनाओ. ठीक है. अभी ऊपर एल्वेओलाई बनाओ जिसकी साइज कम है. राइट. सो अगर साइज कम है, राइट, तो साइज कम है उस टाइम पर 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर एरिया में 4 सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, यानी 4 डॉट बना दो. ठीक है. 4 डॉट बन गए. उससे अपोजिट ऊपर एल्वेओलाई साइज बड़ी बनाओ, ज्यादा है, एंड सेम 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, यानी एरिया तो सेम हुआ, वो ही 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर एरिया में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हो जाएंगे. सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल 2 हो जाएंगे. ठीक है. तो अभी alveolar surface tension is inversely proportional to their concentration per unit area. When the alveolar size, दोनों फिगर को कंपेयर करो. When the alveolar size is small, per millimeter by per millimeter area में there are the 4 surfactant molecule, and as the 4 surfactant molecule यानी it is more than the second one, so ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, नॉट इंक्रीज. रुशिल, इंक्रीज कैसे होगा, इट डिक्रीजेस. रेड कलर की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो. द एल्वेओलर सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया मैंने 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बनवाया. उसमें जब एल्वेओलर स्मॉल है तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल 4 है, जब एल्वेओलर बिगर है तो वो ही मिलीमीटर बाय एरिया में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कम है. जब ज्यादा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है तो एज पर स्टेटमेंट ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा. एंड जब सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कम होंगे होगा. ठीक है. तो जब एल्वेओलर मॉलिक्यूल, जब डायामीटर ऑफ एल्वेओलाई कम है, ठीक है, उसी फिगर को देखो, जब डायामीटर ऑफ एल्वेओलाई कम है तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल एकदम पास पास बैठे होते हैं. जैसे यहाँ क्लासरूम में एक ही बेंच के ऊपर तुम 10 लोग बैठ जाते हो ना,
तो वो डायमीटर कम है, उसमें तुम बहुत ज्यादा लोग बैठ गए, ठीक है ना, तो उस टाइम पर ज्यादा लोग बैठ गए तो सरफेस टेंशन कम है। लेकिन जब उसी एक बेंच के ऊपर तुम 4-5 लोग बैठे हो तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए, 5 ही बैठे हो, यू आर अ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, 5 है, तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल अगर कम है तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर में अगर तुम देखो तो व्हेन द एल्वेलस रेडियस इज स्मॉल, ठीक है, द सर्फेक्टेंट फिल्म इज कंप्रेस्ड, बहुत सारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ जाएंगे, जब पास पास आ जाएंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, पर यूनिट एरिया surfactant molecule increase होगा, so the surface tension decreases. And when the alveolus radius is large, the surfactant molecule, दो surfactant molecule के बीच में जगह ज्यादा बन जाएगी, यानी surfactant film is expanded. It means per unit area surfactant के नंबर कम होंगे तो surface tension क्या होगा, increase होगा। समझ में आया, ठीक है। So this is what the role of phospholipid. Phospholipid का रोल क्या है, it decreases surface tension। इसमें किसी को डाउट है, अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो पीछे और एक फिगर आ रही है, मैं उसमें तुम लोगों को वापस बता दूंगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द रोल ऑफ प्रोटीन्स। 3 चीजें मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बताई, एक तो फॉस्फोलिपिड, डाइपैल्मिटॉल फॉस्फेटिडिल कोलिन, आयन में कैल्शियम आयन बताया। नाउ प्रोटीन में दैट इज एपोप्रोटीन, एल्वेलर एपोप्रोटीन। सो प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फिल्म। जो एल्वेलाई के अंदर जो फॉस्फोलिपिड की फिल्म होती है ना पूरी, ये फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होगा वो प्रोटीन डिसाइड करता है, ठीक है। देयर आर द 4 टाइप्स, SPA, B, C and D. SPA is a large glycoprotein and it regulate the feedback uptake of the phospholipid by type 2 alveolar cells. यानी ये फॉस्फोलिपिड वापस अंदर चला भी जाता है टाइप 2 एल्वेलर सेल में, फिर दूसरा बन के वापस आता है, ठीक है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, तो SPA प्रोटीन। SPB and C are the smaller protein which facilitate the formation of the phospholipid film. यानी जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल जो अरेंज होता है इन द एल्वेलर ल्यूमेन, ठीक है, तो वो पूरी फिल्म जो कौन बनाता है, तो B and C, एंड D का फंक्शन पता नहीं है अभी तक। द टाइम ऑफ सर्फेक्टेंट सिंथेसिस, the surfactant synthesis start at 34 at term, that is 38 to 40 weeks, right? It means अगर देखने जाए तो 7 मंथ के बाद सर्फेक्टेंट, 7 मंथ या उसके बाद 7 मंथ प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो उस टाइम पर या उसके बाद सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है, एट टर्म 38 to 40 वीक्स के अराउंड। इसीलिए अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हुई, ठीक है, 7 मंथ या 6 मंथ पर अगर डिलीवरी होती है, 7 मंथ के चाइल्ड को तुम कोई बार सर्वाइव कर सकते हो, कोई बार नहीं भी कर सकते हो, या फिर 6 मंथ पर डिलीवरी हुई तो वो चाइल्ड को तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों सर्वाइव नहीं होता है, उसका रीजन समझ में आ गया? क्या रीजन है, अभी मुझे बताओ क्या रीजन होगा। 6 मंथ पर अगर डिलीवरी हुई, यू कैन नॉट सेव दैट चाइल्ड, क्यों, व्हाई? चैट में लिखो। दिमाग surfactant, yes, surfactant is not formed, so lung is collapsed, और लंग कोलैप्स होगा तो ब्रीदिंग ही नहीं होगी, ब्रीदिंग ही नहीं होगा तो चाइल्ड को तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे? समझ में आ गई बात? ठीक है, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, राइट? सो व्हेन देयर इज अ डिलीवरी और प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, फॉर एग्जांपल कि 7 मंथ पर डिलीवरी हुई, उस टाइम पर सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, सो बच्चा बाहर आ जाएगा और बच्चे ने अगर रोया, रोना इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उतना तो पता है कि नहीं रोया यानी देयर इज अ डेंजरस कंडीशन,
ठीक है, और रोना क्यों जरूरी है? बिकॉज वंस द चाइल्ड इट डिलीवर्ड, राइट, द चाइल्ड क्राइज, एंड व्हेन इट क्राई, जो एल्वियोलाई कोलैप्स कंडीशन में होते हैं वो खुल जाते हैं, एंड वंस इट इज गोइंग टू बी ओपन अप, it is surfactant molecule which prevents again the collapse of the lung at the time of delivery. समझ में आया? इसीलिए the cry of baby is very important. If the baby does not cry, the alveoli will not expand. And as they about it. That is why the first cry of a baby is very important. When the cry occurs, the alveoli will open up, and once it is open up, जो surfactant molecule है ना, वो alveoli के अंदर spread हो जाएंगे. And once the surfactant molecule spread हो जाएंगे, तो वो lung को collapse नहीं होने देगा. समझ में आया? तो ये हुआ टर्म डिलीवरी पर. लेकिन प्री टर्म डिलीवरी हुई कि 7 मंथ का बच्चा है, क्राई भी किया, लंग एक्सपांड भी हुआ, लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देयर इज अ इरेगुलर लेबर ब्रीदिंग, एंड उस डिसीज को बोलते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है, यस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसको हाईलाइन मेम्ब्रेन डिसीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो उसको तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे कि आइदर यू गिव अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शन, यानी स्टीरॉइड का इंजेक्शन. स्टीरॉइड का रोल अभी सबको पता है, ठीक है, जो सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस बढ़ा देगा, या फिर तुम इनहेल्ड सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स दो, या फिर तुम फॉस्फोलिपिड्स दो बाहर से. और फॉस्फोलिपिड दोगे तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसमें फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगी. समझ में आया? दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन फिटल लाइफ. पीछे भी आ रहा है, मैंने यहाँ बता दिया. Now the regulation of synthesis and secretion. Cortisol, which is main, which stimulate the surfactant synthesis. Thyroxine and insulin also, it stimulate the surfactant synthesis. Quantity and quality of proteins in the surfactant also determine the, sorry, एक मिनट, हाँ, it also determine the surfactant quality. Stretching of lung, hyperinflation of the lung enhance the surfactant synthesis. इसीलिए when you do a yoga and pranayam, जो तुम breathing exercise करते हो ना, अनुलोम विलोम, जो पतंजलि रामदेव जी महाराज, राइट? सो अनुलोम विलोम वो क्या है? बेसिकली यू आर एक्सपांडिंग योर एल्वियोलाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्फेक्टेंट का जो फिल्म है उसको तुम बढ़ा रहे हो, प्लस उसका सिंथेसिस स्टिमुलेट कर रहे हो. समझ में आया? सो इट इज बेनिफिशियल. फार्मेकोलॉजिकल एजेंट्स लाइक बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इट enhance and calcium stimulate the surfactant release. Regular exercise stimulate the surfactant synthesis because again same mechanism, expand होगा. ठीक है? So the functions of surfactant, it prevents the collapse of lung, promotes the alveolar stability and prevents the pulmonary edema. The importance at birth मैंने बता दिया, infant respiratory distress syndrome भी बता दिया. सिगरेट स्मोकर्स में सर्फेक्टेंट डिक्रीज होता है, देयर इज डिक्रीज इन अ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ द सर्फेक्टेंट इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द लंग. यहाँ पर देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो है एज पर द लाप्लास लॉ. अकॉर्डिंग टू लाप्लास लॉ, if the wall tension have the same surface tension, the smaller bubble will have a higher pressure. Pressure is greater in a smaller bubble. राइट हैंड साइड की ए नंबर की फिगर देखो, लार्ज बबल एंड स्मॉल बबल. ठीक है, रेडियस ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन टेंशन अगर सेम रखो तो प्रेशर जो लार्जर बबल है उसमें ट्रांसम्यूरल प्रेशर इज मोर, यानी लंग कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, कम है एज कंपेयर टू स्मॉलर बबल. स्मॉलर बबल में कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन सर्फेक्टेंट क्या करता है? इट रिड्यूसेस, बी वाली फिगर, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन. द प्रेशर इज इक्वलाइज इन द लार्ज एंड स्मॉल बबल. जो मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट एरिया, देखो रेडियस दोनों का डिफरेंट है. राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है एल्वियोलाई, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा है, लेकिन वॉल टेंशन
ठीक है, सरफेस टेंशन स्मॉलर वाले में कम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ज्यादा है। जितना छोटा तुम्हारा एल्वियोलाई होगा, नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज मोर, सो सरफेस टेंशन इज लेस। जब लार्जर बबल होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, एंड दोनों का अगर तुम ट्रांसम्यूरल फोर्स देखो तो दोनों का इक्वल आ जाएगा। P यहाँ 2 है, स्मॉलर वाले में भी 2 है, यानी कोलैप्स होने की टेंडेंसी कम हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, दिस इज व्हाट द रोल ऑफ सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द लंग। सेकेंड, वो पल्मोनरी एडिमा भी नहीं होने देता है। एंड थर्ड इज इट प्रमोट्स द एल्वेलर स्टेबिलिटी। ठीक है, और इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, सो हियर आई विल स्टॉप द क्लास। ट्रीटमेंट है इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फिल्म, इनहेलेशन ऑफ सिंथेटिक सर्फेक्टेंट और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। सो compliance and airway resistance we will learn in the next class. Any question, any doubt? बहुत ज्यादा लंग सर्फेक्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है। और सेकेंडली सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस सिर्फ अपने जो लाइफ है मतलब 1 ईयर या 6 मंथ तक ही वो सिंथेसाइज होता है, बाकी उतना सिंथेसिस नहीं होता, उसका स्प्रेडिंग ज्यादा होता है।